स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। एंड आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे निर्वाण क्लब का पॉडकास्ट सेशन में आने के लिए। तो वी आर वेरी ऑनर्ड टू हैव यू विथ अस। सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट विथ फ्यू क्वेश्चंस एंड इन बिटवीन विल गो थ्रू some discussions and we'll get clarification in our confusions and in other questions, right? So Swamiji, I would like to ask you the very first question. So what inspired you basically a lot to be a monk? My family background was very spiritual family. I was very poor in study, so used to visit temple and ashrams, have a company with monks, satsang. When I studied stories of Yoga Vasishta of Swami Sivananda and Vaja Govindam written by Shankaracharya, it inspired me. Then I decided I must be a monk. Okay. Can you please enlighten us a little bit about your family background and what is the role of your family background in your life? My family, father was a doctor, mother was a just housewife. Okay. We are 8 brothers, 1 sisters. When I was not good student, so my third brother and fourth brother together took me from away from my family, and I study with them, and every day evening used to do satsang. Okay. So it inspired me, and Okay, Swamiji. So we are the common men. We live common life, and you are a monk. Your lifestyle is different from a common man. So I would like to know, like, in what ways does the lifestyle of a monk different from a common man? uh, because the like monk stay with wise people, viveki people, viveki. Those are servicing mentality, renunciation mentality. Okay. We live in creator, so good company affect to us. So our daily routine, early morning get up, study daily, satsang with elder monks and senior monks, Yes. and service for society and faith in the God. So that is the main basic things. Then how do the monks affect to the society? What is the impact of the monks? Because their duty, their behavior, their conduct, their expression of the knowledge, the experience of the knowledge, what they searched, the reveal the truth, presentation, that touch to the human life, they feel it is need. So that affect to society. Okay. So Swamiji, we do have many scriptures like Vedas, from the Vedas, Upanishads, then Bhagavad Gita, like Itihasas like Ramayana, Mahabharata, etc. So those are written basically in Sanskrit, Devanagari Lipi, as I know. So it may be very difficult for every human being to read that and get the essence from there, because Yeah. they may or may not know the Sanskrit, or they may understand the technical terms, etc. Even if people understand, still they face problems in their life, real life, and they cannot tackle that one. So I would like to know from you how without the scriptures or without these things, how they can manage the problems in their life. What is other ways? Yeah. Actually, truly, when we will know truth, then problem will not come. Like we know on the food there is a poison, we will not eat. Okay. We are eating the food where is the poison, means we don't know, and we are a little confused. Yes. In this way, the scriptures has written, Yes. but while we give importance in our life for fulfill our desire, fulfill our wishes, fulfill our wanting, then the effect will be less, because we are not giving the importance to the scriptures. What scripture is telling, we don't lead that life. We do not want to live that life. We want to live by ourselves what we like. So the effect is coming down. Okay. When we start to give importance to scriptures, then we live as a scriptures life, then it will effect will come. Okay. So what makes us the problem to lead the life what defined by the scriptures? What the What problems come to us, मीन्स हम क्यों अपना नहीं पा रहे हैं, स्क्रिप्चर में जो लिखा हुआ है उसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है?
जिसके साथ हम सदा नहीं रह सकते, हाँ, जो हमारा साथ सदा नहीं रह सकता, उसको अपने लिए पसंद करने से हाँ, जीवन में हम विवेक विरुद्ध हम्म, संबंध हो जाता है। जो हमारा नहीं है, हमारे लिए नहीं है, हम्म, उसको हमारा है, हमारे लिए, ऐसे सोचते ही हाँ, हम जानते हैं वो हमारा नहीं है, हमारे लिए नहीं है। हाँ, कोई भी वस्तु हो, व्यक्ति हाँ, हो, परिस्थिति हो, योग्यता हो, स्थान हो, हम्म, अवस्था हो, all these always will not stay with us. Yes, We exactly. cannot stay with that. yes, And it is our own knowledge, yes, own in pure intellect. हाँ, But we are not respecting our intellect because we give, that is for myself, okay, give importance, or we believing, started to believe, we confused ourselves. जब हम जो हमारा साथ सदा नहीं रह सकता उसको इम्पोर्टेंस देते ही उसका आकर्षण हमारा प्रति रहता है। संसार का आकर्षण, संसार है, संसार का साथ संसार का आकर्षण है। जब संसार का आकर्षण इसी प्रकार है, वो सुख रूप है, सुंदर है, और संसार से सुख, सुविधा, सम्मान, we want happiness, comfort and respect. Then we neglect our pure intellect, our knowledge. The temptation for the perishable things, temptation for changeable things, we lose our duty, okay. neglect our duty. So that make us outwards. But as you told Swamiji, we do have the knowledges. That means that knowledge comes from where? That comes from basically the scriptures or the Vedas, Upanishads, all are there, right? From there only the knowledge comes, right? नहीं, विवेक कोई सृष्टि का वस्तु नहीं है, सृष्टि से जात हुआ चीज नहीं है। हाँ, ह्यूमन बीइंग का एक देन है, हाँ, ये प्रकृति से मिला हुआ नहीं है। हाँ, बुद्धि एक चीज है जो बुद्धि, मन, हाँ, इंद्रिय, शरीर, ये सब परिवर्तनशील है और सृष्टि का वस्तु है। हाँ, बट जो विवेक है जन्मजात हाँ, प्राप्त है हर एक व्यक्ति को। हाँ, वो विवेक ही हमारा ज्ञान है, और जो विवेक हमारा ज्ञान स्वरूप विवेक है, वही चीज ही शास्त्र में लिखा हुआ है, वही चीज ही संतों ने बताते हैं। तो शास्त्र का बात, संतों का बात और हमारा विवेक का बात एक ही है। अच्छा, जो अपना विवेक को आदर किया, अपना विवेक का बात सुना, उनको शास्त्र और संतों का जरूरत नहीं पड़ता है। जो अपना विवेक में ही संदेह करता है, तभी जाकर के कोई शास्त्र से और संतों के पास जाना पड़ता है। वो एक माइलस्टोन है, संतों ने बताएंगा, आप जो जानते हैं वही सही है, आपका ज्ञान का आप आदर करो और उसमें आपको जीवन मिलेगा। हाँ, अच्छा, तो स्वामी जी उसमें एक कनेक्टिव क्वेश्चन मैं डालना चाहूँगा कि जैसे एवरीवन हैज़ द डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम, देयर कैपेसिटी, देयर पावर, एवरीथिंग डिफरेंट. So how each and every individual can achieve the same level of peace and happiness or divinity using their own resources? Yeah, we have some talent, like we can tendency to do, that is our strength. We know something, less or more does not matter. Each human being has a discrimination power. Yes. What is right, what is wrong, what should do, what should not do, what is necessary, what is not necessary, and we believe our mother. Yes. जो भी बल हमारा पास है उसको हम दुरुपयोग नहीं करेंगे, कम हो ज्यादा हो। कम बल होगा तो कम सदुपयोग करेंगे, ज्यादा बल होगा तो ज्यादा सदुपयोग करेंगे। मगर कम बल को सदुपयोग करने से जो जीवन मिलेगा, ज्यादा बल को सदुपयोग करने से भी वही जीवन मिलेगा। जो बल का सदुपयोग करेगा उसका जीवन में कर्तव्य परायणता आ जाएगा। बल का दुरुपयोग से ही अकर्तव्य होता है। कर्तव्य परायण व्यक्ति संसार के लिए उपयोगी हो जाएगा, और कर्तव्य परायण व्यक्ति को शांति, सामर्थ्य और योग, अपना स्वरूप में स्थिति, ये तीनों प्राप्त हो जाएगा। शांति मिलेगा, सामर्थ्य मिलेगा, जो असमर्थता होता है कि मैं ये नहीं कर सकता, मेरे से संभव नहीं है, ये फीलिंग नहीं रहेगा। और योग बोलने से जो हमारे से कभी अलग नहीं हुआ, जिसके साथ हम सदा है आगे रहेंगे, उसके साथ योग होता है।
वियोग संयोग उसके साथ होता है जो हम पहले से जिसके साथ हम नहीं थे, अभी थोड़ी देर के लिए है, आगे भी विच्युत हो जाएंगे। संसार का कोई भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, योग्यता, स्थान आदि से संयोग होता है। और जो हमारा सृष्टा है, जो सर्वव्यापी है, उसके साथ हम अपने साथ उसका योग होता है। योग से शांति, सामर्थ्य और स्वरूप में स्थिति वो लाभ होता है। वो बल का सदुपयोग करने से कम हो, ज्यादा हो, उसको मिल जाता है। मनुष्य के अंदर कुछ ना कुछ बल है, करने का टेंडेंसी, करने का वेग है। और तो बल आपका मतलब है जैसे मेरा पास जो मेरा पावर है, जो मेरा कैपेसिटी है वो थोड़ा कम है, तो किसी और के पास थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। तो मेरा वो कम कैपेसिटी यूज करके जितना पीसफुलनेस में गेन कर पाऊंगा, सेम पीसफुलनेस अदर पर्सन भी गेन कर पाएगा उसका ज़्यादा कैपेसिटी यूज करके सेम ही है, सेम कर सकता है। अच्छा, देखो, नहीं करने का करना इसलिए है कि जो हमारा करने का राग है ना, करने का जो राग है, करने का टाइम सही करने से हम नहीं करने का स्थिति में पहुंच जाएंगे। अच्छा, जो हमारे पास ज़्यादा है, ज़्यादा करने का राग है, तो ज़्यादा करके वो नहीं करने का स्थिति में पहुंच जाएंगे। नहीं करने का स्थिति में सभी एक है। जैसे निद्रा स्थिति में आप चला जाते हैं तो सभी एक है। करने में सामर्थ्य और करने का तरीका में, कौशल में भेद है। मगर नहीं करने का स्थिति में सभी एक है। तो करने का टाइम सही करने से, करने का अंत में, करना पूरा होने का बाद हम नहीं करने का स्थिति में चला जाएंगे। अच्छा स्वामी जी, वो नहीं करने का स्थिति जो बात कर रहे हैं आप, वो एक्चुअली क्या है? वो एफर्टलेस स्टेट है। जैसे हम निद्रा में चला जाने का टाइम हम कुछ नहीं करते हैं, मगर हम अपने को खो जाते हैं। जागृत अवस्था में सही करने से फिर नहीं करने का स्थिति जाएंगे, एफर्टलेस स्टेट, कोई अप्रयत्न अवस्था, कोई प्रयत्न नहीं रहेगा, फिजिकली नहीं रहता है, और मानसिक रूप में अनावश्यक वस्तुओं का, व्यक्तियों का चिंतन नहीं होता। अनावश्यक चिंतन, अनावश्यक कर्म, ये दोनों बंद हो जाता है। तो स्वामी जी, मैं थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं आई वांट टू कनेक्ट द डॉट बिटवीन, लाइक एवरी ह्यूमन बीइंग एवरी टाइम कुछ ना कुछ करता रहता है। कर्म तो करना ही है, तो कर्म का करने का स्थिति जो है वो नहीं करने का स्थिति में जाने का वो क्या कनेक्शन है उसका? जब सही करने का बात ये है, नहीं करने का स्थिति में जो हमारा पास कुछ योग्यता हमारे पास है, कुछ बल है, योग्यता है, सामर्थ्य है, समय है, तो हमारा जो कुछ हम कर रहे हैं, पहले हमको देखना पड़ेगा अपना तरफ से 3 चीज। मेरा पास जो कर्म करने के लिए जा रहा हूँ उसका योग्यता है कि नहीं, सामर्थ्य है कि नहीं, समय है कि नहीं, जिसके लिए मैं कर रहा हूँ उसके लिए हितकर होता है कि नहीं, अहित तो नहीं होता, और उनके लिए जरूरत है कि नहीं, और उनको प्रसन्नता देता है कि नहीं। प्रसन्न नहीं देगा तो इरिटेट होगा, तो एंग्री होगा, फिर लूज पीस ऑफ माइंड, देन लूज इंटेलेक्ट, लूज डिस्क्रिमिनेशन पावर, फिर वो उनको समझ में नहीं, विवेक का प्रकाश नहीं होगा। तो इसलिए हमको ध्यान रखना पड़ेगा, उनका हित हो, जरूरत हो और प्रसन्नता हो, और बदले में कुछ नहीं चाहिए हमको, क्योंकि हमको जो चीज चाहिए वो संसार में नहीं है। जैसे हमको जो चाहिए, सदा के लिए शांति चाहिए, निर्भयता चाहिए, निश्चिंतता चाहिए, निर्विकारता चाहिए, सरसता चाहिए, अमर जीवन चाहिए, रसरूप जीवन चाहिए, चिन्मय जीवन चाहिए। संसार का नाशवान वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति से ये जीवन नहीं मिल सकता, सदा के लिए नहीं मिल सकता कोई भी वस्तु से, क्योंकि नाशवान से जो भी मिलेगा नाश हो जाएगा, परिवर्तनशील से जो भी मिलेगा परिवर्तन हो जाएगा। तो हमको जो जीवन चाहिए ये संसार में परिश्रम से, पराश्रय से, परिवर्तनशील जगत से नहीं मिल सकता। इसलिए कर्म करने के बाद जो अपने लिए योग्यता, सामर्थ्य, समय के अनुसार दूसरा का हित के लिए, जरूरत के लिए, प्रसन्नता के लिए कर्म करके बदले में हमको कुछ नहीं चाहिए, और क्रियाजनित अभिमान भी ना करें कि कोई भी कर्म हम एक इंडिविजुअल एफर्ट से नहीं करते हैं, कलेक्टिव एफर्ट से करते हैं। जैसे मैं कहीं भोजन बनाता हूँ, बर्तन भी चाहिए, गैस भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, स्पाइसी भी चाहिए, सब चीज़ दूसरा लोग बनाया हुआ है, उसके साथ मैं भी कुछ बनाया हूँ, इसलिए मैं अपने को अभिमान करना नहीं है। अभिमान करने से सुपीरियर इन्फीरियर फीलिंग आता है,
तो अभिमान को त्याग करना है, फल आशा त्याग करना है, हाँ रिटर्नली वी नो नीड एनीथिंग एंड नो टू बी ए प्राउड, हाँ अभिमान नहीं करना है, और क्रिया जनित तो सुख भी नहीं लेना है। करने का सुख लेने से बार बार करने का इच्छा रहेगा अच्छा और पराधीनता परिश्रम रहेगा, फिर हाँ। वो अपने में शांत नहीं हो पाएगा। हाँ ऐसे भाव से हाँ अपने लिए 3, उनके लिए 3 और बीच में 3, अच्छा मेरे लिए योग्यता सामर्थ्य समय, हाँ दूसरा के लिए हितकर हो, जरूरत हो, प्रसन्नता हो, बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, और अभिमान भी नहीं करना है, हाँ। और क्रियाजनित सुख नहीं लेना है। इसी भाव से क्रिया किया हुआ कर्म को सही कर्म कहा जाता है। इसी कर्म के अंत में हम अपने आप में स्थित हो जाएंगे। इसका नाम है योग विज्ञान, भौतिक विज्ञान, हाँ कर्म विज्ञान। अच्छा ऐसे स्थिति में जाना, वो स्थिति मनुष्य जीवन का एक स्वरूप है। हाँ। वो योग मनुष्य का स्वरूप है। इसी स्थिति में शांति, सामर्थ्य और स्वरूप में स्थिति प्राप्त होता है। हाँ। ये हो गया कर्म का थ्योरी। हाँ हाँ कर्म के अंत में हम अपने, और हर एक व्यक्ति इसको करने के लिए सामर्थ्य है, इतना तो है ही, हाँ, सबके व्यक्ति हाँ, सब समर्थ है। हाँ। सब लोग, सब मानव योग का स्थिति में प्राप्त हो सकता है। हाँ। योग मंच कोई बड़ा बड़ा सेमिनार करना, हाथ पांव उठाना, ये नहीं है कि इसके लिए कोई किताब ही ज़्यादा पढ़ना, ये नहीं है। तो कर्म का अंत में सही करके अप्रयत्न अवस्था में जो स्थिति में जाता है, उसका नाम है योग है। हाँ। इसी प्रकार हमारा पास ज्ञान भी है, हम कुछ जानते हैं। जैसे अभी बताया, हमको जो जीवन चाहिए, चिन्मय जीवन, रसरूप जीवन, अमर जीवन, सदा के लिए शांति, निर्भयता, निश्चिंता, कोई संसार में, कोई वस्तु में, व्यक्ति में, परिस्थिति में नहीं है। हाँ। तो संसार का आकर्षण नहीं रहना चाहिए। हाँ। हमारे लिए, हाँ। शरीर के लिए तो चाहिए। जब संसार के लिए हम उपयोगी हो जाएंगे, कर्तव्य परायण हो जाएंगे, शरीर का आवश्यकता इसे पूरा हो ही जाएगा। हाँ। जन्म के बाद शरीर का आवश्यकता आता ही है। जैसे हाँ। शरीर बाद में आता है, शरीर का आवश्यकता पहले आ जाता है। जैसे माँ का स्तन में दूध आ जाता है, बच्चा को दूध चाहिए। असमर्थ है तो कोई सामर्थ्यवान पहले ही है। तो इसी प्रकार शरीर का आवश्यकता आ जाता है, और संसार से हमको कुछ नहीं चाहिए। तो हम जब ज्ञान का आदर करेंगे, और हमारा ज्ञान के प्रकाश में हम कोई भी कर्म करते तो हमको ये पता चल जाता है, ये मेरे लिए जरूरी है कि नहीं, मैं कर सकता हूँ कि नहीं, और करना उचित है कि नहीं। जो अनुचित है उसको छोड़ दे, जो जरूरी नहीं है उसको छोड़ दे, जो नहीं कर सकते उसको छोड़ दे। ऐसे हमारा पास जो विवेक है, जो डिस्क्रिमिनेशन पावर है, उसको आदर करके विवेक का प्रकाश से हम अपना जीवन बिताएंगे, तभी भी हमको वो जीवन मिल जाएगा। उसी से जो जीवन मिलेगा उसको बोलते हैं बोध। बोध से निर्विकारता, निश्चिंतता और निर्भयता और स्वाधीनता प्राप्त होगा, पराधीनता नहीं रहेगा। ये भी मनुष्य जीवन का आवश्यकता है, हर एक व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। और मनुष्य के अंदर बिलीव करने का भी है। हम बिलीव करते हैं, हमारा माता को बिलीव करते हैं। किसी ने बताया ये आपका माँ है, तो हम बिलीव करते हैं। तो जो बिलीव है, हमारा जो बिलीव सृष्टा के ऊपर होना चाहिए। जो हमारा सृष्टा है, उसको भगवान कहो, अल्लाह कहो, फादर कहो, कुछ भी कहो, जो हमारा सृष्टा है। सृष्टा जरूर है, बिना सृष्टा का सृष्टि नहीं होता है। उसके साथ जब हम संबंध अपना मानते हैं, हम चेतन है, अपरिवर्तनशील है, तो वो चेतन का सृष्टा कोई चेतन ही होगा। तो उनके साथ वो है, पहला एक बात है। उनके साथ मेरा संबंध है। वो जो मटेरियल में बना है, मैं भी वही मटेरियल में हूँ। और वो मेरा पास कुछ भी है, जैसे बल, योग्यता, सामर्थ्य के रूप में जो कुछ में मेरा पास है, उनका है, मेरा नहीं है। और उनसे मुझे कुछ नहीं है। वो शास्त्र के आधार पर, अथवा गुरु के आधार पर, अथवा अपना विवेक के आधार पर हमारा सृष्टा को मान सकते हैं। मानने से भी अगाध प्रीति, अगाध प्रेम का, आत्मीयता का उदय होगा हमारा अंदर। उसमें से अपना सृष्टा का विरह, पहले उनसे बिछुड़ने का विरह, उसका स्मरण और प्रियता उदय होगा। अभी संसार का हमारे से विरह उत्पन्न होता है, संसार हमको अच्छा लगता है और संसार के प्रति हमारा आकर्षण है, उनके प्रति स्मृति, आकर्षण, विरहता और प्रियता उदय होगा। इसमें से हमको चीयरफुलनेस, ब्लिस और सरसता जीवन मिलेगा।
हाँ, ये शांति मिलना, स्वाधीन मिलना और सरसता मिलना, ये मनुष्य जीवन का मांग है। हाँ, और योग, बोध, प्रेम से वो प्राप्त हो हो सकता है। सकता है। ये मानव जीवन का स्वरूप है और फॉरमोस्ट नीड है। हाँ, हर एक व्यक्ति हाँ, अप्रयत्न अवस्था में जा करके, अथवा अपना ज्ञान को आदर करके, अथवा अपना सृष्टा के साथ आत्मीयता करके ये स्थिति में पहुंच सकते हैं। कोई भी, कहाँ भी, कैसे भी स्थिति में हो, हुँ, ये संभव है मनुष्य के हाँ। लिए। तो स्वामी जी, जब आप अभी डिस्कस किए उसका एसेंस मुझे यही लगा कि आप 3 चीज़ पे गौर किए। तो पहला है समय, दूसरा है योग्यता, तीसरा है सामर्थ्य। ये तीनों को हम यूटिलाइज़ करके संसार के लिए क्या दे सकते हैं, वो हमें देखना चाहिए। ताकि संसार से क्या लेंगे वो नहीं देखना चाहिए, तब हमारे जीवन में शायद सुधार आएगा। राइट? या जो हमारे पास बल, योग्यता, सामर्थ्य है, हाँ, संसार से हमको मिला है। ये हाँ, भी, हाँ, हाँ, हम तो निर्बल थे, हम अयोग्य थे, हमारे पास कोई धन का, बल का कोई सामर्थ्य नहीं था। ये सब संसार से मिला है, संसार को लौटा देना है। हाँ, क्योंकि संसार से हमारा पास लोन है, हुँ, हमारा ऋण है। हाँ, तो जब संसार को सेवा के माध्यम से लौटा देते हैं हुँ, और संसार से हम कुछ नहीं चाहते हैं, संसार से ऋण हो जाता है, ऋण मुक्त हो जाता है। हाँ, जब संसार से ऋण मुक्त हो जाता है, संसार का प्रभाव से भी मुक्त हो जाता है हम। अच्छा, हाँ, और संसार का चीज को संसार दे देने से हुँ, संसार हमको बहुत पसंद करता है। हुँ, और जब संसार हमको पसंद करता है, संसार हमारा शारीरिक आवश्यकता सामग्री को भी दे देता है। हुँ, कर्तव्य परायण व्यक्ति तो संसार बहुत पसंद हुँ, करेगा। हुँ, जब कर्तव्य परायण हो जाते हैं, संसार पसंद करता है। हुँ, कर्तव्य परायण व्यक्ति के पीछे पीछे उनका आवश्यकता आने लगता है। हमारा जीवन का आवश्यक सामग्री नहीं मिलता है, इसका मतलब है हम अपना जीवन में कर्तव्य परायण नहीं हुए। हुँ, जब हम कर्तव्य परायण हो जाता है, हमको कुछ अभाव नहीं रहता, अभाव का अभाव हो जाता है। हम करोड़पति नहीं हो सकते हैं, मगर हमारा जीवन में ऐसे नहीं लगेगा कि मेरा मुझे कुछ चाहिए। हाँ, अपने आप में संतुष्ट हो हाँ। जाता है। तो स्वामी जी, आप एक एक वर्ड पे गौर किए, जो कर्तव्य परायणता, ड्यूटीफुलनेस। तो उसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, वो क्या होता है? हम कैसे जानेंगे कि हमारा कर्तव्य कौन-सा स्थिति में क्या है? कर्तव्य का जो वो विधान है, हुँ, कर्तव्य वो नहीं हो सकता जिसको हम नहीं कर सकते हैं। जिसका करने का योग्यता नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, हाँ, वो हमारा कर्तव्य नहीं है। हुँ, और संसार भी हमसे वो आशा नहीं करता है जो हम नहीं कर सकते। जैसे कोई अंधा को देखने का बात तो संसार नहीं बोलेगा, हाँ, गूंगा को बोलने को नहीं, नहीं कहेगा, हाँ, निर्धन को धन देने को संसार कभी नहीं नहीं, कहेगा। संसार इतना बेईमानी नहीं है, हुँ, इतना नासमझ नहीं है, इतना इतना अनुदार नहीं है कि हमको वो काम करने के लिए कहे जो हम नहीं कर सकते। अच्छा, जो हम कर सकते हैं वही ही हमारा कर्तव्य हो सकता हाँ, है। जिसको हम कर सकते हैं वो करना चाहिए। हाँ, जब हम कर सकते हैं, करना चाहिए, तो हमारा अकर्तव्य नहीं रहना चाहिए जीवन में। वो क्यों नहीं अकर्तव्य आता है तो अलग बात है। हाँ। अभी जो कर्तव्य परायणता है, क्या बता रहे थे? वो कर्तव्य परायणता के कौन-सा स्थिति में हमारा क्या होना क्या चाहिए? क्या कैसे कर्तव्य उसको परायणता क्या होना चाहिए? हाँ, संयोग काल में कर्तव्य का अ, विधान रहता है, योग काल में नहीं रहता है। जिसके साथ हम सदा है हाँ, और सदा रहेंगे, हुँ, उसके साथ योग होता है। अच्छा, उसके समय, उसी समय हमारा कर्तव्य का विधान नहीं है, कर्तव्य नहीं रहता है, हाँ, अप्रयत्न स्थिति रहता है। हाँ, कर्तव्य का विधान तभी रहता है जब हम संयोग काल किसी वस्तु के साथ हम है, कोई व्यक्ति के साथ है, हुँ, कभी परिस्थिति के साथ है, किसी योग्यता के साथ है, किसी स्थान के साथ है, समाज के साथ है, परिवार के साथ है, जिसके साथ संयोग होता है और वियोग हो होता जाएगा, है, हाँ, बाद में हम बिछुड़ जाएंगे। हाँ, उसी समय कर्तव्य, हमारा कर्तव्य बनता है। हाँ, और जो मैं है, हुँ, वो मैं जिसके साथ अपना संबंध मान लेता है हाँ, ममता के कारण। हाँ, जैसे मैं अपने को शरीर मान लिया, हुँ, मैं एक स्वामी हूँ, पुरुष हूँ, हाँ, तो मैं शरीर हूँ ऐसे हाँ, मानता हूँ, शरीर मेरा है ऐसे। शरीर भाव में जो हाँ, बोलते हैं, कोई भी, हाँ, मैं इसके साथ ममता हो गया, ये मैं हाँ, मानता हूँ तो एक कर्तव्य बन जाता है। हाँ, परिवार के साथ को ये परिवार मेरा है ऐसे मान लेने से उससे एक कर्तव्य बन जाता है। हाँ, जैसे मैं अपने को शरीर मानूंगा, हुँ, तो शरीर
जिस एक का कर्तव्य होता है तो दूसरा का अधिकार होता है। जैसे वक्ता का कर्तव्य श्रोता का अधिकार होता है, अच्छा। श्रोता का कर्तव्य वक्ता का अधिकार होता है। एक का हाँ, कर्तव्य दूसरा का अधिकार होता हाँ, है। तो मानव को अपना कर्तव्य परायणता से दूसरा का अधिकार को देना है। हाँ, हमारा जो अधिकार है, हमको जो चाहिए संसार में नहीं है, हाँ, इसलिए त्यागना है। हाँ, जो जिसके साथ संबंध होता है, जैसे शरीर के साथ मेरा संबंध ऐसे हाँ, माना है, हाँ, मानने का समय में कर्तव्य बना, तो शरीर का अधिकार क्या है हमारा प्रति, हमारा शरीर के प्रति कर्तव्य क्या है? शरीर को सुस्त रखना हुँ, और आलसी नहीं बनाना। हाँ, ये शरीर के प्रति हमारा कर्तव्य हाँ, है। मैं अपना को कोई भाई है, पति है, हाँ, पुत्र है, हुँ, ऐसे मानता हूँ। हाँ, हाँ, तो संसार परिवार के साथ संबंध बना, हाँ, तो परिवार के हर एक व्यक्ति के प्रति सद्भावना रखना और सहयोग रखना, ये मेरा कर्तव्य बन जाता है। हाँ, सद्भावना इसलिए रखना है कि असद भावना रखेंगे हुँ, तो असद विचार आएगा, असद विचार से असद कर्म होगा, हाँ, असद कर्म से हमारा नम्रता चला जाएगा, हाँ, समता चला जाएगा, प्रसन्नता चला जाएगा, हुँ, हमारा अंदर बुरा हाँ, भावना आ जाए, रहेगा, हाँ, तो हम ये सब खो जाएंगे हाँ, जीवन में। हाँ, इसलिए सद्भावना रखना बहुत जरूरी है हाँ, और सहयोग रखना, क्योंकि हम भी जब कभी असमर्थ थे, सामर्थ्यवान का हुँ, आवश्यकता अनुभव कर रहे थे, हाँ, तो निर्धन थे तब धनवान का आवश्यकता अनुभव कर रहे थे। हाँ, अभी संसार से हमारे से कोई सहयोग चाहता है और हम कर सकते हैं, तो परिवार के प्रति करना चाहिए। हाँ, ये परिवार के प्रति कर्तव्य है हमारा। हाँ, सद्भावना रखना सबके प्रति और सबके प्रति सहयोग रखना। हाँ, इसी प्रकार समाज के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है? समाज हम अपने को बुराई रहित देखना चाहता है। हुँ, तो अपना जीवन में बुराई रहित हो जाना हाँ, समाज का अधिकार है। सो फ्री फ्रॉम द डर्टी, मीन्स फॉल्ट, हाँ, फ्री फॉल्ट्स फ्रॉम द राइट, एनी हाँ, फॉल्टलेस लाइफ, थॉटलेस, नो मिस्टेक। हाँ, जो हमारा भूल है हुँ, उसको देख खोज करके और भूल रहित हो जाना, हाँ, तभी समाज का काम आ जाता है। हाँ, समाज भूल रहित देखना चाहता है हुँ, हमसे। हुँ, और हम अपना सृष्टा को मानते हैं, हुँ, परमात्मा को मानते हैं, हाँ, तो परमात्मा के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है ना? अविचलित विश्वास रखना, हाँ, दूसरे के प्रति नहीं, केवल परमात्मा के प्रति श्रद्धा विश्वास विश्वास, रखना, हाँ, वस्तुओं का सुरक्षा करना, सदुपयोग करना, हाँ, व्यक्तियों के सद्भावना रखना, सहयोग करना, कोई हर्जा नहीं है। हुँ, मगर जो विश्वास है, श्रद्धा, विश्वास, आत्मीयता, अपनापन रखना, सृष्टा के साथ ही रखना। तो सस हम एक सोसाइटी में रहते हैं तो हमारे चारों तरफ भी बहुत सारे लोग होंगे तो मिलते जुलते रहते होंगे हम, तो उनके प्रति भी हम विश्वास रख सकते हैं, मीन्स वन ह्यूमन बीइंग कैन ट्रस्ट अनदर ह्यूमन बीइंग, जो वो भी वस्तु के रखना। प्रति विश्वास रखेगा, धोखा खा जाता है। वस्तु नाश होने से इसमें विश्वास टूट जाएगा। हाँ, वस्तु का सुरक्षा करने से कोई हर्जा नहीं है। अच्छा, सुरक्षा करने से कोई हर्जा नहीं, उसके वस्तु के ऊपर विश्वास करेंगे, हुँ, धन मिल जाएगा तो मेरा जीवन ठीक हो जाएगा, धन टूटने से मेरा जीवन भी टूट जाएगा। हाँ, कोई व्यक्ति के ऊपर विश्वास करेंगे, इनको विश्वास करने से और उनके ऊपर भरोसा करने से मैं सब ठीक-ठाक हो जाएगा। हुँ, वो व्यक्ति कुछ हो गया तो व्यक्ति को फिर मेरा जीवन का क्या हुआ जो बाकी स्वप्न रखा था, हाँ, तो वो भी टूट जाएगा। इसलिए व्यक्तियों का सद्भावना रखे, सहयोग रखे, अपना ना माने, क्योंकि जो सदा अपना साथ नहीं रह सकता, हुँ, जिसके साथ मैं सदा नहीं रह हाँ, सकता, वो अपना कैसे हो सकता है? हाँ, जिसके ऊपर मेरा स्वतंत्र अधिकार नहीं है, मैं हाँ, जैसे चाहूँ, जितना दिन चाहूँ रख नहीं सकता हूँ। हुँ, कोई वस्तु के ऊपर मेरा अधिकार है, स्वतंत्र अधिकार है, कोई व्यक्ति के ऊपर है, कोई नहीं, नहीं, परिस्थिति के नहीं, जिसके ऊपर मेरा अधिकार नहीं है, वो मेरा कैसे होगा? वो मेरा होता तो मेरा हाँ, अधिकार रहता। नहीं, तो इसलिए संसार में कोई भी नाशवान चीज़ को अपना ना माने, हाँ, अपने लिए नहीं माने, क्योंकि अपने लिए हमको शांति चाहिए, निर्भयता चाहिए, निश्चिंतता चाहिए, कोई वस्तु परिस्थिति हुँ, से नहीं मिलता। नहीं मिलेगा, तो ये संसार हुँ, अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है। हाँ, इसके साथ ममता ना करे, हाँ, कामना ना करे, हाँ, तो संसार का प्रभाव से मुक्त हो जाएँगे। हाँ, जो व्यक्ति वस्तु से विश्वास करेगा, उसके अंदर लोभ रूपी दोष जागृत हो जाएगा। व्यक्ति के ऊपर विश्वास करेगा, व्यक्ति को महत्व देगा, उसमें मोह रूपी दोष दोस्त आ आ जाएगा। जाएगा, और जो परिस्थिति योग्यता के ऊपर विश्वास करेगा, उसके अंदर अभिमान रूपी दोष हुँ, आ जाएगा। और जो स्थान
के ऊपर विश्वास करेगा, उसमें परिच्छिन्नता आ जाएगा। परिच्छिन्नता कलह को जन्म देगा, भेद को उत्पन्न कर देगा। इसी प्रकार नाशवान के ऊपर विश्वास करने से, उसको महत्व देने से, अपने लिए पसंद करने से मनुष्य दोष युक्त हो जाएगा। हाँ इसलिए दोष मुक्त होने के लिए वस्तुओं का सुरक्षा करे, हाँ सदुपयोग हाँ करे, व्यक्तियों का सद्भावना करे, सहयोग करे, हाँ मगर उसको अपना ना माने, अपने लिए ना माने और उसके ऊपर विश्वास ना विश्वास करे। राइट ये बहुत जरूरी है। हाँ okay so Swamiji my next question would be like how can every individual हम्म, maintain a sense of divinity in this busy world so is it necessary to be a monk to maintain the divinity ना मॉन्क का बात जो नासवान को अपने लिए पसंद नहीं करता, वो मॉन्क है। कोई भी मॉन्क हो हाँ सकता है। नासवान का सुरक्षा, सदुपयोग करना, सेवा करना, हाँ ये और अपने लिए पसंद नहीं करना। हाँ नासवान को, जो हमारा साथ सदा नहीं रह सकता, जिसके साथ मैं सदा नहीं रह सकता हूँ, उसको अपना है, अपने लिए अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है। नहीं हाँ इसको जो जान करके ऐसे जो जीवन बिताता है, वो मॉन्क है। वो पैंट शर्ट पहने अथवा लाल कपड़ा पहने, कैसे भी स्थिति में रहे, वो मॉन्क है। मॉन्क बोलने से ऐसे नहीं कि मुंडवा हाथ ले ले और गेरुआ पहन ले। इसका एक रूपरेखा है। हाँ एक और क्या पूछ रहे थे? so yeah is it necessary to be a monk to maintain the divinity of our life हाँ, टू बी ए मॉन्क, मॉन्क मीन्स संसार को अपने लिए पसंद नहीं करना, अपना नहीं मानना, वो बहुत जरूरी है। हाँ इस आप लाल कपड़ा ले ना ले, इसके उसका मॉन्क का डेफिनेशन मैं ऐसे नहीं मानता हूँ। अच्छा हाँ मॉन्क का डेफिनेशन है जो सेवा, त्याग और प्रेम जिसके जीवन में आ गया है, वो अथवा साधु उसके हाँ लिए हाँ जो प्रयत्नशील है, वो संत है, मॉन्क है। हाँ तो जिस जो जो अपने पास जो चीज है, हाँ संसार का सेवा में लगाना चाहता है, हाँ जो निष्काम हो गया है, संसार से कुछ नहीं चाहिए, जो निर्मम हो गया है, अथवा जीवन में निष्काम होने के लिए अथक प्रयत्नशील है, हाँ निर्मम होने के लिए अथक प्रयत्नशील है, हाँ अपना भूल रहित होने के लिए अथक प्रयत्नशील है, जीवन को भूल रहित बनने के लिए, कर्तव्य परायण होने के लिए अथक प्रयत्नशील है, हम्म सेवा का भाव रखते हुए दूसरे को अपना मान करके, हम्म दूसरे के प्रति उदारता के साथ अपने पास जो कुछ है दूसरा का काम में लगाने के लिए अथक प्रयत्नशील है, हाँ अथवा संसार को अपने लिए पसंद नहीं करता है, संसार का सुख का, सुविधा का, हाँ सम्मान का, अपने का जरूरत महसूस नहीं करता है, वो त्याग है। और अपना सृष्टा के प्रति अम, विश्वास विश्वास, रखना सद्भावना और विश्वास के साथ हाँ उनको अपना मानना, उनके प्रेम उदय हम्म होना, उनके साथ स्मृति, विरह, प्रियता का उदय होना, हम्म अथवा ऐसे जीवन को पसंद करना, जीवन में स्वाधीनता हाँ हो जाना, पराधीनता का क्षय हो जाना, जीवन में स्वाधीनता का चाह रहना, हाँ ये सब जिसके अंदर है, वो संत है। हाँ then how do you define the word spirituality and how it is related to the humanity whether both they are same or any difference or what are these two words spirituality and humanity स्पिरिचुअलिटी हमारा स्वरूप है। हाँ जीवन में उसका जो बाह्य प्रकाश है, जब इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, हाँ बुद्धि के द्वारा उसका स्थूल रूप में परिप्रकाश होता है। जैसे उदारता होना, उदारता से बाह्य रूप है सेवा करना। हम्म आंतरिक सूक्ष्म रूप है, अंदर से दूसरा का पीड़ा में पीड़ित होना। हाँ दोनों एक ही चीज है। हाँ दूसरा का पीड़ा में पीड़ित होना, हम्म ये आध्यात्मिक रूप है। हाँ सेवा करना ह्यूमैनिटी है, ह्यूमैनिटी ह्यूमैनिटी है। हाँ तो उसका हमारा शरीर, जब हम आध्यात्मिकता, आध्यात्मिकता मीन्स जो अविनाशी जीवन है, हाँ उसका चाह रखते हैं, उसका हाँ आवश्यकता अनुभव करते हैं, हम्म व्याकुलता अनुभव करते हैं, हम्म ऐसे उसका विरहता अनुभव करते हैं, ऐसे जीवन
पाने की चाह रखते हैं, उनका साथ संयोग का वियोग सॉरी योग का हाँ, जीवन में जब चाह हो जाता है, तभी हमारा शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। वो मानविकता का है स्वरूप है। जैसे हम बोध हो जाएगा, तो निर्विकारता, निश्चिंतता, सब आ निर्भयता जाता है। आ जाएगा। हाँ, हम निर्भय हो जाएंगे तो हमारा साथ दूसरा भी निर्भय हो जाता है। हाँ, हम भयभीत रहेंगे तो हम दूसरा को भी भयभीत करते हैं। हाँ, तो उसका प्रभाव हमारा शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि के ऊपर आ जाता है। हाँ, वो ह्यूमैनिटी है। हाँ, और आंतरिक जो स्थिति है, हाँ, वही है, उसको आध्यात्मिक देते हैं। हाँ। सो आप एक बात अच्छी बात बताएँ जो हमारा विश्वास सिर्फ़ सृष्टा के ऊपर रहना चाहिए, हम्म। ना कि संसार के किसी भी तरह चीज़ के ऊपर। तो हाउ टू एस्टैब्लिश ए गुड एंगेजमेंट विद द ऑलमाइटी गॉड? हाँ, देखो, ये शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि परिवर्तनशील है, नाशवान है। हाँ, संसार भी परिवर्तनशील है, नाशवान है। नाशवान है। हमारा ये अनुभव है। हाँ, तो संसार से जो चीज हमारा पास आता है, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि के लिए होता है। हाँ, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि से जो कुछ होता है, संसार से होता है। हाँ, और शरीर से जो करेंगे, शरीर के लिए बेनिफिट होता है। हाँ, इंद्रिय से करेंगे तो इंद्रियों के इंद्रिय लिए से बेनिफिट बेनिफिट होता होता है। है। हाँ, मन के द्वारा करेंगे तो मन के लिए बेनिफिट होता है। हाँ, और बुद्धि के द्वारा करेंगे करेंगे तो बुद्धि को लाभ होता है। हुँ, परमात्मा का जो संबंध है, हाँ, अपना सृष्टा का अपने साथ है। उनको जो संबंध जोड़ना है, अपने द्वारा जोड़ना पड़ता है। वो शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि का उसमें प्रवेश नहीं है, क्योंकि नाशवान है। हाँ, नाशवान अविनाशी के पास पहुंच नहीं पाएगा। हाँ, हम अविनाशी है, हमारा उस प्रति गति हो सकता है। उनको हम पसंद करेंगे, हाँ, तो हम हमारा द्वारा पसंद करेंगे। हाँ, जैसे कोई विवाहिता स्त्री अपना पति को अपना मान लिया, हाँ, कि किसके द्वारा? अपने द्वारा अपना माना। हुँ, अपने द्वारा जो हम अपने द्वारा अपना परमात्मा को पसंद कर सकते हैं। हाँ, और शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि द्वारा संसार का सेवा कर सकते हैं। हाँ, तो और अपने द्वारा तभी कर सकते हैं जब हम एफर्टलेस स्टेट में जाएंगे, उससे पहले नहीं होगा। अच्छा, अपना जब हम सेवा करके करने का वेग से रहित हो जाएंगे और अपने में स्थित हो जाएंगे, हुँ, तब अपने द्वारा, अपने आप, हुँ, अपने में अपना सृष्टा के लिए चाह अथवा व्याकुलता कहो, हाँ, ऐसे हाँ, हाँ, उदय होगा। हाँ, उदय होगा, हुँ, वो है ऑलरेडी, उसका हाँ, उदय होगा। वो अपने आप अपने सृष्टा से मिला देगा। उसके लिए कोई करने का एफर्ट नहीं है, हाँ, क्योंकि हर एक कर्म आदि और अंत होता है। हाँ, आदि अंत वाला कर्म का फल भी आदि अंत आदि अंत ही होगा। हो आदि अंत वाला कर्म और ये हाँ, आदि अंत वाला का कर्म का फल आदि अंत से अनंत अनादि परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता। हाँ, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि हाँ, नाशवान है। हाँ, उससे होने वाला क्रिया भी नाशवान है। हुँ, संसार से जो कुछ हम करके जो मिलता है, हमारा पास सदा नहीं रह हाँ, इट सकता। इज़ वेरी लिमिटेड, लिमिटेड। लिमिटेड, हाँ, वो सदा के लिए नहीं नहीं रहता है। रहता, हाँ, तो करके जो मिलेगा सदा के लिए नहीं है। हाँ, इसलिए नहीं करने का स्थिति में अपने आप में स्थित होना पड़ेगा, और उसके बाद अपने आप होने लगेगा। हुँ, परमात्मा के चाह कहो, व्याकुलता कहो, हाँ, अ, परमात्मा के हाँ, प्रति गति कहो, हाँ, स्मृति कहो, ये सब होने लगेगा। हाँ, और उसको तो उससे परमात्मा के चाह आने से पहले हम्म, तो हमें अपना पीसफुलनेस, हमें अपना शांति, हमें निश्चितता ये सब में जीना होगा। उसके जीना होगा, और चाह भी कर सकते हैं। हम संसार को जैसे पसंद करते हैं, ऐसे परमात्मा का मिलना पसंद कर सकते हैं। अपने द्वारा तो करना है ना, हाँ, तो हम कर सकते हैं। जब परमात्मा को पसंद करेंगे, परमात्मा का आवश्यकता अनुभव हुँ, करेंगे, परमात्मा का साथ अपने लिए पसंद करेंगे, हाँ, तभी परमात्मा के साथ गति होगा। मगर वो तब तक नहीं होगा जब तक हम नाशवान को अपने लिए पसंद करते हैं, अविनाशी का चाह उत्पन्न नहीं होगा। हाँ, जब जो उत्पन्न हुआ चीज को हम पसंद करते हैं अपने लिए, हाँ, अनुत्पन्न हुआ चीज को प्रति हमारा
चाह चाह कम उत्पन्न नहीं नहीं होगा। होगा। हाँ, तो हमको जब नासवान के प्रति हमारा चाह उत्पन्न होता है, तभी हमको देखना चाहिए, हाँ, मैं जिसको चाहता हूँ, वो मेरा साथ कब तक रहेगा? हाँ। जब जो मेरा साथ नहीं रहेगा, उसको मैं चाह करके क्या फ़ायदा है हुँ, मेरे लिए? हुँ, जो सदा के लिए मेरा साथ नहीं रहेगा, हाँ, मैं आपको एक चीज़ दूँगा, मगर आपके पास सदा नहीं रहेगा। आप क्या करेंगे उसको? हुँ, तो हम क्यों पसंद करेंगे अपने लिए? तो अपने लिए ऐसे चीज़ को पसंद करना चाहिए जो सदा हो, हाँ, सर्वत्र हो, सबके लिए हो, हुँ, तभी जाकर के हम उस तरफ हाँ, जा सकते हैं। ये हमारा ऊपर डिपेंड करता है, हम पसंद करेंगे तो जा सकते हैं, पसंद नहीं करेंगे तो नहीं जा सकते। हाँ। So, a human being if wants to communicate with another human being, so he needs a medium, जो साधन बोला जाता है, जैसे टेलीफ़ोन हो या जो भी हो, वाणी के माध्यम से कम्युनिकेट कर सकता है। तो व्हाट इज़ द साधन फॉर ए ह्यूमन बीइंग टू कम्युनिकेट विद द ऑलमाइटी गॉड? उसके लिए क्या साधन का ज़रूरत होगा? सेवा, त्याग और प्रेम। सेवा से सेवा का बाह्य रूप सेवा है। हाँ, सेवा एक माध्यम है। हुँ, सेवा तभी बनेगा जब सब कुछ ये सारा सृष्टा के नाते हुँ, ये सृष्टि का सृष्टा है। हुँ, सृष्टा के नाते सब हमारा है। जैसे हाँ, पिता माता के नाते सारा भाई बहन मेरा ही है। हाँ, इसी प्रकार सृष्टा के नाते सब कुछ मेरा है। हुँ। अथवा मेरा कुछ भी नहीं है। जब संसार मेरा नहीं है तो ये शरीर भी मेरा नहीं है। जब शरीर मेरा है तो संसार भी मेरा है। अच्छा, तो 2 बात यहाँ पे है, ऐसे कि सब कुछ मेरा है या सब कुछ भी मेरा नहीं है? नहीं है। अच्छा, ये 2 को थोड़ा हाइलाइट कीजिए आप। जैसे ये शरीर को हुँ, संसार से अलग रख सकते हैं क्या? नहीं, नहीं रख हाँ, सकते, उसका स्थिति नहीं रहेगा। हाँ, संसार का ये शरीर संसार का एक अभिन्न अंग है। हाँ, उसको अलग नहीं किया नहीं जा किया जा सकता, नहीं सकता। रस ये हाथ अलग दिखता है, अलग नहीं है। हाँ, ये दोनों जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए हैं। हाँ, इसी प्रकार हमारा शरीर ये संसार के साथ अभिन्न अंग है। हुँ, जब शरीर संसार के साथ अभिन्न अंग है तो आपका शरीर भी संसार का अभिन्न अंग है, हाँ, सबका शरीर अभिन्न अंग है। तो हाँ, जब मेरा शरीर को मैं अपना मानता हूँ तो आपका शरीर को मैं आपको भी अपना मानने में क्या हर्जा है? हाँ, अथवा दूसरा को मैं अपना नहीं मानता हूँ तो मेरा भी अपना नहीं मानूंगा। कोई अपना है, कोई अपना नहीं है। हाँ, उसमें जो उदारता आता है वो ममता जन्य उदारता होता है। जब हाँ, सब कुछ मेरा है, नहीं तो मेरा कुछ नहीं है, हुँ, भी स्वभाव जन्य उदारता आएगा। हाँ, उदारता बोलने से दूसरा का पीड़ा में पीड़ित होना, हाँ, दूसरा का दुख में दुखी होना। हाँ, जैसे हमारा शरीर का कोई दुख होगा तो हमको दुखी होता है कि हुँ, नहीं हुँ, फिर? हुँ, इसी प्रकार दूसरा का शरीर का दुख में क्यों दुखी नहीं होते हैं? हाँ, जब दूसरा का शरीर का दुख से हम दुखी होंगे, हुँ, तो हमारा पास जो धन है, हुँ, बल है, योग्यता है, दूसरा का पीड़ा में पीड़ित होकर के लगाने में तत्पर हो जाएँगे। हाँ, वो सेवा है, हाँ, दूसरा का पीड़ा में। सेवा से क्या होगा, हमारा अंदर निष्काम होने का सामर्थ्य आएगा। हाँ, निर्मम होने का सामर्थ्य आएगा। जो दूस हर एक चीज़ मेरा है, मेरा धन मेरा है, योग्यता मेरा है, शरीर मेरा है, हाँ, ऐसे मानते तो ये कुछ मेरा नहीं है, जो सदा मेरा साथ नहीं रहता, मेरा नहीं है। ये ये सामर्थ्य आएगा हाँ, हमारा अंदर। और मुझे जो संसार से कुछ चाहिए, मुझे संसार से कुछ नहीं चाहिए। ये हाँ, दूसरा से जो हाँ, चाह था, वो चाह मिट जाएगा। हाँ, चाह मिटने से कामना मिटने से शांति को प्राप्त होगा। हाँ। और जो ममता रहित निष्काम जो वर्ड है तो मतलब कर्म करेंगे बट फल को नहीं चाहेंगे या कर्म ही नहीं करेंगे। कर्म का फल को नहीं चाहेंगे हाँ, दूसरा से। हाँ, कर्म कर्म करने का राग है ना, हाँ, वो रह नहीं सकता बिना किए। हाँ, हाँ, जब तक करने का राग है तब तक बिना किए रह नहीं सकता, हुँ, कुछ ना कुछ करेगा। हुँ, शरीर, इंद्रिय, मन के द्वारा जब तक राग है 3 चीज़ कर सकता है। हुँ, एक तो भोग कर सकते हैं, हाँ, एक तपस्या कर सकते हैं, हाँ, अथवा सेवा कर सकते हैं। हुँ, भगवत प्राप्ति शरीर के द्वारा नहीं होगा। शरीर बोलने से स्थूल शरीर हो गया, सूक्ष्म शरीर हो गया, कारण शरीर हो गया। हाँ, ये सब तीनों शरीर आ हाँ, गया। तो शरीर के द्वारा भोग कर सकते हैं, हाँ, एन्जॉयमेंट संसार मेंटालिटी। का वस्तु जो वस्तु भी व्यक्ति हाँ, अपना हाँ, सुख के लिए, सुविधा के लिए, सम्मान के लिए हाँ, उसको उपयोग कर सकते हैं, अथवा दूसरा का हित के लिए, ज़रूरत के लिए, प्रसन्नता के लिए कर सकते हैं, क्योंकि हाँ, बिना किए रह नहीं सकते। हाँ, तो जो सेवा नहीं करेगा, भोग करेगा। हाँ, भोग करने से मोह और आसक्ति में फँस जाएगा। अच्छा, जो अच्छा, भोग वृत्ति से कर्म करेगा, हाँ, वो सुख और सुविधा सम्मान के लिए हाँ, उसको और चाह रहेगा। हाँ, चाह रहने से
हम्म। उसका नाम है कामना है, हाँ। रहेगा। उसमें से कामना में कोई बाधा देगा, हाँ। तो पहले कामना में क्या होता है, जब तक कामना पूर्ति अपूर्ति रहता है तब हम्म। पीड़ा रहता है। जो हाँ। चीज़ चाहता है नहीं मिलता है हम्म। तो दुःख हाँ। रहता है, जीवन में दुःख हाँ। रहेगा। अच्छा, कामना पूर्ति के समय कोई बाधा दिया, हम्म। इरिटेट होगा, आफ्टर इरिटेट गेट एंग्री, आफ्टर गेट एंग्री हाँ। लूज पीस ऑफ माइंड, हाँ। लूज पीस ऑफ माइंड देन नो इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट देन डिस्क्रिमिनेशन पावर गन, हाँ। बुद्धिनाश हो जाएगा उनका, हम्म। विवेक नहीं रहेगा। हाँ। तो फिर वो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए बोलकर फिर जीवन में फँस जाता है। हाँ। अथवा बाधा नहीं आता है, हाँ। जो कामना है हाँ। पूरा नहीं हुआ है, कभी भी दुःख होता है। हाँ। अर्थात कामना पूरा हो गया, पसंद नहीं आया, हाँ। अपना रुचि के अनुसार पसंद नहीं आएगा, अपना चाह के अनुसार, तभी भी दुखी होता है। हाँ। अतः कामना पूर्ति हो गया हम्म। और पसंद भी आ गया, हम्म। हाथ से निकल गया, तभी भी दुःख रहता है। हम्म। और हाथ से नहीं निकल गया, कोई मुझे जो इतना बढ़िया चीज़ प्राप्त हुआ, हाथ से निकल ना जाए कभी, उसमें भय भय भी भी रहता रहता है, है। भय रहता है। तो कामना पूर्ति से अपूर्ति का दुःख, कामना पूर्ति का समय अब कोई बाधा देने से दुःख, हाँ। जो चाहते हैं होता नहीं दुःख, होता तो भाता नहीं दुःख, भाता तो रहता नहीं दुःख, रहता तो हाथ भय देता है, हाथ से निकल जाने का भय। तो कामना पूर्ति जीवन का उद्देश्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है। कामना पूर्ति भोग वृत्ति से किया हुआ कर्म, उसमें दुःख, भय, अशांति को जन्म देता है जीवन में। और पराधीनता, बिना दूसरा का हुँ। सहायता से कर नहीं सकते कामना पूर्ति। और परिश्रम, परिश्रम से शक्ति का क्षय होता है। हाँ। तो पराधीनता, परिश्रमता, दुःख, भय, अशांति में फँस जाता है हाँ। आदमी। काम ओ तो इससे क्या हमको शिक्षा मिला? तो हमारा जीवन का जो लक्ष्य है, भोग नहीं है। हाँ। तो फिर योग हमारा जीवन का लक्ष्य हो सकता है, योग अथवा सेवा हो सकता है, क्योंकि करने का राग है, हाँ। दूसरा का हित के लिए, ज़रूरत के लिए कर सकते हैं, तभी करने का अंत में शांत और स्थिर हो सकता है। और एक तपस्या कर सकते हैं शरीर के द्वारा। तपस्या के द्वारा जो शक्ति सामर्थ्य प्राप्त होगा, वो भोग में लगाएगा, नहीं तो योग में अच्छा। लगाएगा हाँ। अथवा सेवा में लगाएगा। हाँ। तो सेवा जीवन का लक्ष्य हो अच्छा। सकता है, हाँ। भोग जीवन का लक्ष्य उद्देश्य नहीं है। हाँ। आवश्यक पूर्ति जीवन का लक्ष्य है, रुचि पूर्ति जीवन का लक्ष्य नहीं नहीं। है। तो अ, सेवा से हाँ, तो मैं पूछना चाहूँगा यहाँ पे कि अगर मैं किसी का सेवा करूँ कामना के सहित, तो ये कामना कितना से जस्टिफाइड सहित है? करना सेवा नहीं है। कामना के कुछ जो चाहता है, हाँ। वो सेवा नहीं होता है। जो चाहता है सेवा क्या करेगा? अपना रुचि पूर्ति करेगा। सेवा के नाम पर रुचि पूर्ति करेगा, कामना पूर्ति करेगा, संकल्प पूर्ति वो करेगा। सेवा नहीं क्या कहलाता था वो? कहा जो दूसरा से कुछ चाहता है वो सेवा नहीं है। नहीं। हाँ। अभिमान करता है तो सेवा नहीं है। हाँ। और जिसी वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य को अपना मान करके करता है, वो भी सेवा नहीं होगा। वो अच्छा। संसार का चीज़ को अपना मान लिया, तभी हाँ। भी सेवा नहीं होगा। और सेवा का अभिमान रखने से सेवा नहीं होगा। क्रिया जनित तो सुख लेने से भी सेवा नहीं होगा। हुँ। और बदले में कुछ चाहने से भी नहीं होगा। और जो योग्यता, सामर्थ्य, समय नहीं है, हुँ। उससे ज़्यादा कुछ करना चाहता है, तभी भी सेवा नहीं हाँ। होगा। हाँ। दूसरा का हित, ज़रूरत, प्रश्नता को ध्यान में नहीं रखता है, तभी हुँ। भी सेवा नहीं होगा। हाँ, तो स्वामी जी यहाँ पे देखिए जैसे भगवान इतना सुंदर नेचर क्रिएट किए हैं, हमें भी क्रिएट किए हैं। तो जो इतना सब वस्तु है संसार में, तो हमारे लिए ही होगा ये। तो हम क्यों ना उसको अपना माने? हुँ। हम क्यों ना उस संसार के वस्तु को अपना ना माने? हाँ, संसार का जब संसार का वस्तु को अपना माने, हाँ। तो जब संसार का वस्तु को अपना मान से उसको सुरक्षा रखने का दायित्व आ जाता है कि नहीं आ जाता है? हाँ। सुरक्षा रखे, हाँ। वस्तुओं का सदुपयोग करने का दायित्व आता है कि नहीं हाँ। आता है? सदुपयोग करे। हाँ। और वो व्यक्तियों को अपना मानने से, जैसे कोई स्त्री अपना पति मानता है, हाँ। तो उसको देखभाल करता है कि नहीं? हाँ, करता पति अपना पत्नी को देखभाल करता करता है है। कि नहीं? हाँ। क्योंकि अपना मानता है। हाँ। तो सबको देखभाल करना, वस्तुओं का सुरक्षा करना, सदुपयोग करना, सबको सद्भावना रखना, सहयोग करना, उसका नाम सेवा है। हाँ। मानना चाहिए और करना चाहिए। हाँ। नहीं, दूसरा को नहीं मानता है तो अपना शरीर को भी ना माने। हाँ। भगवान के ये नाते मानना चाहिए, सृष्टा के नाते मानना हाँ। मानना चाहिए। हाँ। हाँ। हाँ, तो जैसे स्वामी जी हम संसार में रहते हैं और हम अपने में भी रहते हैं। तो हमारे अंदर में भी कुछ दुर्भावना और सद्भावना हो सकता है। संसार से भी हमें कुछ दुर्भावना और सद्भावना मिल सकता है। सो व्हाट आर द इनर एंड आउटर फैक्टर्स दैट डिस्टर्ब द पर्सन्स पीस एंड कामनेस? अ,
हम्म, जीवन में बाहर में क्या है उसको सुधार सके ना सुधार सकते ये हमारा जिम्मेवारी नहीं है, मगर हमारा अंदर भूल अपने द्वारा, अपना ज्ञान के द्वारा हमको जानकारी है। हाँ तो जब हम अपना ज्ञान के द्वारा अपना भूल को देखते हैं हाँ। तो उसमें एक पीड़ा जागृत होता है। हम्म। और पीड़ा से इसलिए जाता है कि अपने को कोई भूल देखना नहीं चाहता है। कोई अपने को भूल बोलेगा तो अच्छा नहीं लगता है, बुराई बताएगा आप बुरा है तो हमको पसंद नहीं लगता है, हाँ क्योंकि हम अपने को अच्छा देखना चाहते हैं, हाँ। अच्छा सुनना चाहते चाहते हैं। हैं। तो जब हमको अपने ज्ञान द्वारा अपना बुराई दिख जाएगा हम्म। तो बुराई से रहित होने का। रहित होने का हमको एक पीड़ा होगा। हाँ पीड़ा के बाद जो किया हुआ बुराई को हम दोहराएंगे नहीं, हाँ नया बुराई करेंगे नहीं, हाँ तो बुराई रहित हो जाएंगे। हाँ। जो जीवन में बुराई रहित हो जाएगा उसका अपने आप उसको शांति मिलेगा, हम्म। वृथा चिंतन वृथा चेष्टा भी बंद हो जाएगा। हाँ। बुराई से ही वृथा चिंतन वृथा चेष्टा होता है, हम्म। तो शांति मिलेगा। हाँ और क्या प्रश्न था? हाँ। उम, तो मैं पूछ रहा था कि जैसे हमारे अंदर भी कुछ है और बाहर से भी कुछ प्रभाव आ रहा है जो हमें जो कामनेस, पीसफुल वो स्टेट से बाहर रखता है। तो नहीं, हम उसको। बाहर का चीज हमको पीस नहीं दे पाता। अब पीस पाने का कोई भी प्रश्न ही नहीं उठता जीवन में। संसार से हमको, हमारा शांति में संसार बाधक है, हाँ तब शांति पाने का कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि संसार से आता ही रहेगा, सारा संसार से हाँ। आता ही रहेगा। तो हमारा अशांति का कारण संसार नहीं है, हमारा अशांति का कारण हमारा भूल है। अच्छा। हमारा क्या भूल है ना? जिसको अपना नहीं मानना चाहिए था उसको अपना माना, जिसको सदुपयोग करना चाहिए था उसका दुरुपयोग किया, हम्म। और संसार से कुछ आशा रखा। हाँ ये सब हमारा भूल है। सो हमारा भूल को छोड़ देने से अपने आप शांति मिलेगा। हाँ और संसार से अशांति मिलता है ऐसे जो मानता है, हाँ। तो इतना बड़ा संसार से में तो अशांति ना कहीं मिलता रहेगा। मिल जाएगा। हाँ तो शांति पाने का कोई शांति का खोज करने का नहीं होता। मगर हर एक मनुष्य में, हाँ। वो स्त्री हो, पुरुष हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी देश का हो, हम्म। हर एक व्यक्ति के अंदर एक स्वाभाविक मांग है हाँ कि मुझे सदा के लिए शांति चाहिए, सदा के हाँ। लिए निर्भय चाहिए, सदा के लिए निश्चिंतता चाहिए, सदा के लिए स्वाधीन चाहिए, सदा के लिए सरस जीवन चाहिए, चेयरफुल चाहिए। वो मांग है तो जीवन है जरूर, प्यास है तो पानी है। तो हमारा जीवन में जो मांग है, यो मांग है तो निश्चित रूप में हमारा जीवन में सदा के लिए शांति मिल सकता क्या है। ये पॉसिबल है मतलब इतना संसार में रहने के संसार में रहते हैं हम, इसके अंदर भी ये पॉसिबल है कि हमें सदा के लिए शांति मिले? जब रात को सोने का टाइम 6 घंटा के लिए हमको सदा के लिए शांति मिलता है, तो 24 घंटा के लिए क्यों नहीं मिल सकता है? तो हमको ढूंढना चाहिए अशांति का कारण क्या है, हमारा हाँ अशांति का हाँ कारण क्या है। हमारा कामना ही हमारा अशांति का कारण है। हाँ जैसे हम दिन चाहते हैं, रात नहीं चाहते, तो रात आने से हम अशांत हो जाते हैं। हाँ हम रात भी चाहेंगे, दिन भी चाहेंगे, अथवा रात नहीं चाहेंगे, दिन भी चाहेंगे, हमारा कोई चाह नहीं है। रात आए, दिन आए, हमको क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ। हमको कोई अशांत नहीं होता है। हम्म। हम कुछ चाह रखते हैं, हमारा चाह पूरा नहीं होता है, तभी जा कर के अशांत होते हैं। हाँ हम जब रात को सोने का टाइम हमारा कोई चाह नहीं रहता है, हाँ तब हम अशांत नहीं होते हैं। हाँ सो जागृत अवस्था में हमरा अपना चाह को छोड़ दे, हाँ क्योंकि हम जो चाहते हैं संसार में नहीं है। हाँ। इसलिए संसार से कोई चाह नहीं रखना चाहिए। हम्म। चाह अचाह हो जाने से शांति मिल जाता है। हाँ नहीं तो किसी को संदेह हो तो अचाह होकर के देखे, हाँ और नहीं मिलता हो तो हमको आकर के पूछे। हाँ। सो अभी कुछ ऑडियंस का मैं सवाल आपसे पूछने जा रहा हूँ। जैसे हम्म। हमारा एक स्टूडेंट का सवाल था कि जैसे हम सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं लाइफ में। स्टूडेंट का मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव एंजाइटी, प्रेशर इन ड्यू टू एग्जाम स्टडी एंड अदर वर्क्स, फैमिली प्रेशर एटसेट्रा। सो एंजाइटी टू कामनेस, सैडनेस टू द हैप्पी स्टेट एंड डिस्टर्ब्ड माइंडसेट टू द काम माइंडसेट। सो कैसे ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है उसको? हर एक व्यक्ति को सुबह उठने का टाइम
कुछ समय अपने आप में रहना चाहिए, बैठना चाहिए। सोने से पहले अपने आप में रहना चाहिए और कोशिश करना चाहिए दिन में 3-4 बार अथवा हर एक-एक घंटा में हुँ, थोड़ा 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए शांत होकर के हाँ, आप शांत होने की कोशिश करना चाहिए। हाँ, थोड़ा शांत होकर के हुँ, रहें। हुँ, तो शांत होने से हमको दिखता है हमारा बारे में, हम कैसे हैं, कौन-सा स्थिति में, हमारा क्या स्थिति है, हाँ, अपने आप को देखते हैं। कोई भी कर्म करने से पहले, कोई कर्म का अंत में 1, 2, 3 मिनट शांत होना चाहिए। जब हाँ, शांत होंगे, मैं हमको दिखेगा मैं जो करने जा रहा हूँ, करना उचित है कि नहीं है, हुँ, ज़रूरी है कि नहीं है, कर हुँ, सकता हूँ कि नहीं कर कर सकता हूँ। करने का बाद भी 1 मिनट शांत होंगे तो हमको पता चलेगा मैं जो किया ठीक किया कि नहीं किया, हुँ, ज़रूरत था कि नहीं ज़रूरत था। तो हमारा वास्तविक स्वरूप, हमारा व्यक्तिगत स्थिति के बारे में हमको पता चलेगा। हुँ, मैं क्या हूँ? क्या हुँ, कर रहा हूँ? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हुँ, मेरा व्यक्तित्व क्या है? जब हमको दिखेगा हाँ, अपने बारे में, तब हमारा अंदर कोई भूल होगा, हुँ, कोई कमी होगा, हाँ, तो हमको पीड़ा होगा। हाँ, हमारा जीवन में कभी हम ऐसे महसूस करते हैं, हाँ, मैं क्या बताऊँ, जो करना चाहता हूँ, करना चाहिए उसको तो जानता तो हूँ, हाँ, मगर करता नहीं हूँ। हुँ, जो नहीं करना चाहिए उसको तो जानता हूँ, मगर कर लेता हूँ, ऐसे हाँ, फीलिंग होता है। इसका मतलब है हमारा जीवन में कोई भूल है। हमारा जीवन में कभी पराधीनता का महसूस होता है। घर में, ऑफ़िस में अथवा स्कूल में अपने आप में कहीं पराधीन महसूस होता है। हुँ, अ, तभी बॉन्डेज टाइप का, स्लेव टाइप का महसूस होता है। हाँ, इसका मतलब है हमारा जीवन में कोई भूल है। हमारे जीवन में सरसता नहीं है, डिप्रेशन है, खिन्नता है। इसका मतलब है हमारा जीवन में कोई भूल है। हमारा जीवन में अशांति है, भय है। इसका मतलब है हमारा जीवन में कोई भूल है। हाँ, जब हम शांत होकर के वो भूल को खोजना चाहिए। मेरा जीवन में क्या भूल है? हुँ। और भूल रहित हो जाने से इससे मुक्त, ये सारा जितना चीज़ है उससे मुक्त हो जाएगा। सो वो भूल का जो ज्ञान होता है, अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस, वो कहाँ से मिलेगा हमें? जब हम शांत होंगे, विवेक से प्रकाश से मिलता, हमारा अंदर विवेक है, हाँ, वो विवेक का प्रकाश से हमारा भूल हमको दिख जाता है, मगर हम विवेक को अनादर कर देते हैं। जब अनादर कर देते हैं, हाँ, तो हम भूल रहित नहीं हो पाता है। हमको अपना भूल नहीं दिखता है, हमारा दोष नहीं दिखता है और दोष का रास्ता नहीं दिखता है, ऐसे नहीं है, हुँ, दिखता है। हाँ, हम एक ब इग्नोर कर देते हैं उसको, एक हमारा भूल को। हम इग्नोर कर देते हैं। हाँ, एक व्यक्ति ने था, कोई एक संत ने आए, हाँ, उनको पूछे, मुझे मार्गदर्शन कीजिए। हाँ, शरणानंद स्वामी जी ने आए थे। हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बुलाए थे उनको। अच्छा, तो आने का बाद स्वाभाविक जैसे बोलते हाँ, बताते हैं कि हमको मार्गदर्शन कीजिए। हाँ, शरणानंद स्वामी जी बोले, चलने से मार्ग दिखेगा, हुँ, चलने से मार्ग मार्ग दिखेगा। दिखेगा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो बात को अपने ऊपर लिए, बोले मुझे चलने का भी इच्छा है हाँ, और मार्ग भी दिखता है, मगर हाँ, चल ही नहीं जा रहा है, चल नहीं पा रहा हूँ। हाँ, तो शरणानंद जी बताए, नहीं चल पाने से जो पीड़ा है, वो पीड़ा में चलने का सामर्थ्य निहित है। अच्छा, तो हमको अपना भूल दिखता है और भूल रहित होना चाहते हैं, हाँ, मगर भूल रहित होने का पीड़ा हमारा अंदर है क्या? जैसे हमको हाँ, नौकरी नहीं मिलने से हमें एक पीड़ा होता है। हाँ, हम कुछ चीज़ चाहते हैं तो नहीं मिलने से पीड़ा होता है। क्या सचमुच हम भूल रहित होना चाहते हैं? चाहते हैं तो नहीं होने से पीड़ा होना चाहिए। हाँ, जिसको पीड़ा होगा वो खोजेगा, हुँ, किसके पास जाएगा, पूछेगा और उससे ऊपर उठने का कोशिश करेगा। हुँ, मगर हमारा अंदर पीड़ा ही नहीं है, हाँ, इसका मतलब हम चाहते नहीं हैं। हाँ, भूल ही जीवन बिताना चाहते हैं। हाँ, तो हमको भूल है और भूल का अ, ज्ञान भी है हाँ, और उससे ऊपर उठने का हाँ, चाहेंगे तो हाँ, हो हो सकते हैं। सकता है, हाँ। हम नहीं चाहेंगे तो कोई नहीं कर सकता। हुँ, हुँ। So the second question is Swamiji, audience से so what is our identity as a human being beyond our own health, wealth, power, position, etc. जैसे कि हम जनरल लाइफ में बताते हैं तो ये फलाना आदमी कौन है तो ये इस रिचेस्ट पर्सन का बेटा है तो ये इस पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड है तो हम ऐसे कनेक्ट करके उसको आइडेंटिटी देते हैं बट हमारा ह्यूमन बीइंग के नाते आइडेंटिटी क्या है हमारा? हमारा ही
मनुष्य के जो उदारता है, स्वाधीनता है और प्रेम है, ये इसका मानव का स्वरूप है। स्वाधीन, हम्म उदारता हम्म और प्रेम। स्वाधीनता जैसे बताया, स्वाधीनता से ए, उम, अम, निर्म निर्मम, निष्काम, निर्विकारता, निश्चिंतता, हम्म निस्संदेहता, हाँ निर्भयता, ये सब प्राप्त होगा। हाँ वो अपने लिए उपयोगी है। हाँ हमको चाहिए ऐसे जीवन। हाँ और उदारता से अम, शांति, सामर्थ्य हाँ का उदय होगा, हम्म तो संसार के लिए उपयोगी है। कर्तव्य परायणता का उदय होगा, संसार के लिए उपयोगी हो जाएगा। हाँ और आत्मीयता से अपना सृष्टा के प्रति अगाध प्रीति, अगाध प्रेम, अ, श्रद्धा, विश्वास के साथ आत्मीयता का जागृत हो जाएगा। तो पर अपना सृष्टा के लिए उपयोगी हो जाएगा, जो संसार के लिए भी उपयोगी, हम्म जो अपने लिए भी उपयोगी और जो अपने सृष्टा के लिए। सृष्टा के लिए भी उपयोगी, हाँ वो मानव है। ये हाँ मानव का महत्व है। हाँ वो मानव का जो उपाधि है, हाँ ये तभी संभव है हाँ योग, बोध, प्रेम से। हाँ तो योग के साथ संसार का संबंध है, हाँ बोध के साथ अपने के साथ संबंध है, प्रेम से अपना सृष्टा के साथ संबंध है। तीनों एक ही है। एक आने से बाकी दो आ जाता है। जिसके साथ योग आ गया, कर्तव्य परायणता आ गया, बोध और प्रेम आ जाता है। बोध आने से योग और प्रेम आ जाता है। प्रेम आने से योग और बोध भी हो जाता है। हाँ योग के साथ करने का संबंध है, हमारा अंदर करने का जो राग है, हम्म बल भी है उसके साथ। हाँ तो बल का सदुपयोग और सेवा करने का। हमारा अंदर ज्ञान है, ज्ञान का आदर आदर और ज्ञान और प्रेम, विश्वास के साथ संबंध है। तीनों कर्तव्य परायणता, त्याग और प्रेम, हाँ ये मनुष्य का, मानव का स्वरूप है। हाँ तो स्वामी जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्ञान हमें मिला। तो मैं दो पर्टिकुलर चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा जी हमारा बातचीत में से, मुझे जो बहुत अच्छा लगा जी कि पहला बात है, आप जो बोले कि हमें ज्ञान के तलाश में नहीं जाना है, और ज्ञान चाहिए, उसके तलाश में नहीं जाना जी है। जितना ज्ञान, जितना बल हमारे पास है, हम उसको अगर आदर करेंगे, तो उसी से ही हमारा शांति, सुख जो मिलना, वो सब प्राप्त हो सकता है। जी हाँ, तो दूसरा बात ये है कि आप जो 3 चीज़ बताए, समय, सामर्थ्य एंड योग्यता के साथ हम संसार को क्या दे सकते हैं, तो उसी में हमारा फ़ोकस रहना चाहिए, ना कि हम संसार से क्या ले सकते ले हैं। सकते हैं। ठीक है। तो स्वामी जी, one last question, interesting question, asked by the audience. Like, you have visited nearly more than 8 countries apart from India, and you have delivered your speech there. So, what did you feel the experience, and what did you feel the similarity or dissimilarity in terms Mm. of spirituality in India and outside India? Yeah. Before that, I would like to speak. Yes. ये हमारा पास जो बल है, हाँ, योग्यता है, सामर्थ्य है, समय है, हाँ, उसको हम सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। हाँ, हम और ज्यादा चाहेंगे, हाँ, क्या सदुपयोग कर पाएंगे? तो हमको सोचना चाहिए, मैं ज्यादा हाँ, ज्यादा वस्तु चाहता हूँ, ज्यादा ज्यादा योग्यता चाहता हूँ, ज्यादा हाँ, ज्यादा सामर्थ्य चाहता हूँ, हाँ, बल चाहता हूँ, क्या मैं अभी सदुपयोग नहीं कर पाता हूँ? आगे सदुपयोग कर पाऊंगा? हाँ, मैं और जो ज्ञान चाहता हूँ हाँ, जानने के लिए, अभी जो जानता हूँ उसको ही आदर नहीं करता हूँ, ऐसे ही मेरा जीवन नहीं है। हाँ, तो ज्यादा ज्ञान का संग्रह करने से, जान लेने से, क्या ऐसे मेरा जीवन बन जाएगा? अथवा अभी ही परमात्मा का प्रति विश्वास नहीं करता हूँ, मेरा हाँ, सृष्टा के पास। हम हुँ, कभी सोचते हैं ये आश्रम चला जाऊं, हुँ, इधर रह करके अभी नहीं करते हैं, हाँ, तो धीरे धीरे होगा, कब होगा? अथवा ऐसे स्थान को हिमालय चला जाने से होगा, हाँ, ये हो सकता है। नहीं, तो हमको ज्यादा सामर्थ्य चाहिए, कि जो सामर्थ्य है सदुपयोग करने को एग्ज़ैक्टली सर। दृष्टि देना चाहिए। हाँ, हमको ज्यादा ज्ञान चाहिए, जो जितना ज्ञान है उसका सदुपयोग में लग जाना चाहिए, हाँ, कि अभी परमात्मा का साथ संबंध छोड़ करके हाँ, संसार से संबंध तोड़ देना चाहिए, हाँ, कि धीरे धीरे जो अभी नहीं कर पाता है कभी नहीं कर हाँ। पाएंगे।
ये बात बहुत ज़रूरी है मनुष्य के लिए। हाँ। तो दूसरा था कि आप इंडिया में भी बहुत टाइम बिताए हैं, इंडिया के बाहर भी बहुत कंट्री घूमे हैं, वहाँ पे स्पिरिचुअल टॉक्स दिए हैं बहुत सारा। तो व्हाट डिड यू फील द डिफरेंस इन स्पिरिचुअलिटी इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया? अ, व्यावहारिक जगत में जो स्किल है, हाँ, जो कला है, वो विदेश में तो बहुत सुंदर है ही। हाँ। इधर का जो खोज है, डेप्थ है, वो बहुत इट्स क्या ब्यूटीफुल आई गेस। या हाँ, इट्स ये बहुत सोचने से परे है। ऐसे कोई साधारण मनुष्य सोच नहीं पाएगा। हाँ, ये भारत का जो संत हाँ, मनीषी सब। ज्ञानी हुँ, सेंट सेजेस जो खोज किए हैं, हाँ, उसमें कितना तत्व भरा हुआ है, हाँ, उसमें कितना गभीरता है हाँ, और कौन सा स्थिति को ले सकता है, हुँ, वो चीज और इधर सर्वत्र है, इधर हाँ, ज्यादा हाँ, सभी के ताज़ी, पास है। ये बहुत बड़ी चीज है भारत में, उसका जो सब। खोज है हाँ, और रिवील द ट्रुथ एंड प्रेजेंट हाँ, द ट्रुथ हाँ, हमारा शब्द के माध्यम से हाँ, जो सत्य के बारे में हुँ, हमको अवगत कराना, जो हाँ, वाणी से परे है, जिसको इंद्रिय मन बुद्धि से परे है, हुँ, उसको हमारा सामने उपस्थापन करना, उसको हम हमारा सामने अ, अनुभव कराने के लिए मार्गदर्शन कराना, हाँ, ये एक अद्भुत है भारत में। हाँ, और मानवता का अंदर अच्छा बुरा तो रहता ही है हाँ, हर जगह में। हुँ, कहाँ कुछ आधिक्यता है, कहाँ कुछ कमी है, हाँ, तो सारा संसार एक इकाई है। हाँ, तो उधर कुछ अच्छा है तो इधर कुछ कमी है हुँ, संसार में। सांसारिक दृष्टि से इधर कुछ अच्छा है तो उधर कुछ कमी है। हाँ, मगर इधर जो आध्यात्मिक खोज है, हाँ, जो सत्य के प्रति खोज है, हाँ, इतना तो दूसरा जगह में हाँ, इतना ना, उनके अंदर इतना व्याकुलता है, हाँ, ना खोज है, हुँ। ना उसका डेप्थ है। Acha. Swamiji, I will conclude with one more thing. Like out of the screen, when I was discussing with you, I found an interesting thing. Like you are telling about 6M Mm. factors. So if you kindly please highlight the 6M factors to the audience. हाँ, there is a one book, miscellaneous theory, एमबीए में पढ़ाते थे मेरा ख्याल हाँ, से। मिसलिनियस यूरोप में किसी ने लिखा था, मैं उसको पढ़ा था। मैं जब आश्रम में मैनेजमेंट करता था तो बड़े बड़े मैनेजर, अमेरिका का मैनेजिंग डायरेक्टर, उन लोग को पूछता था मैं मैनेजिंग कैसे करूँ ये सब चीज़ के, तो उन्होंने बोले ये किताब पढ़ो। तो मैं पढ़ा, उन लोग से जो कुछ सीखा था उसमें जो भी कुछ एक मैनेजमेंट करने के लिए बड़ा चीज को पहले फर्स्ट एम है, माइंड है। हमको अपना माइंड में सारा पिक्चर होना चाहिए, मैं क्या करना चाहता हूँ। सेकंड एम है मनी, उसके लिए कितना मनी चाहिए, वो भी हमको सामने रखना चाहिए। और वो क्या क्या काम है, वो काम के लिए परफेक्ट मैन, थर्ड एम, मैन होना चाहिए। ठीक आदमी, वो परफेक्ट एक्सपीरियंस्ड, गुड हैंड, ये होगा तो फिर उसमें हाँ, क्वालिटी आता है। आता है, हाँ, और मटेरियल, उसके लिए क्या-क्या मटेरियल चाहिए, वो भी हमारा पास होना चाहिए। उसमें मशीन क्या-क्या होना चाहिए और एक मैनेजमेंट रहना चाहिए सबको कोऑर्डिनेट करने के लिए। तभी जाकर के ये कंप्लीट होता है। हमारा पास माइंड भी है, मनी भी है, मटेरियल नहीं तो काम रुक जाता है। मटेरियल भी है, मशीन नहीं है तो काम रुक जाता है। मगर सब कुछ है, मैनेजमेंट करने के लिए नहीं है कोई, तो भी काम रुक जाता है। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है। मैं उससे सीखा कि कोई भी काम करने से पहले ये 5 से 6 एम को देखता हूँ। फर्स्ट है माइंड, मनी, मैन, मटेरियल, मशीन एंड मैनेजमेंट। देन हमारा काम पूरा परफेक्टली प्रेजेंट होता है। तो स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद अपना यहाँ कीमती टाइम देने के लिए और नॉलेज शेयरिंग के लिए। तो हम निर्माण क्लब तरफ से आपका बहुत धन्यवाद देते हैं और हम चाहते हैं कि आगे भी हमारा सेशन में आप आते रहिए, जब भी आपके साथ जुड़ने का मौका मिले तो हम भी कोशिश करेंगे आपसे जुड़ने का। एंड फ्यू मोर क्वेश्चंस आर स्टिल देयर,
So I would like to solve in other times. Yeah, So thank you, Samji. Thank you very much. Pranam. हम्म, मैं भी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, हृदयतार सहित कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ। आपने मुझे इधर बुलाया और मेरा पूरा ख्याल रखा, रहने का, खाने का व्यवस्था किया और जो सौभाग्य प्रदान किया सेवा पानी के माध्यम से सेवा करने के लिए, मैं सब आप सबको धन्यवाद देता हूँ, कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ, साथ ही साथ अपने आप को धन्य और पुनीत समझता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।